In this question, capacitor 2 microfarad charged from 0 to 5 coulomb, and this is the equation. V is the instantaneous voltage, V naught is the final voltage, T is the time variable, and this is the tau is time constant. Here, if T is equal to 0 at the very start, it is what 0 means 1. So 1 minus 1 is 0. So V is 0. And at T, when very large, approaching to infinity, then e to power infinity means 1 में 0. So V will be V naught, maximum value. It is the maximum value. And you can find out the V Q by here V voltage is given Q by C. So Q means here Q means suppose 5 volt 5 coulomb charge, C is given 2 microfarad. So 2.5 into 10 power 6 means here 2.5 into 10 power 6 volt. So option 4 is correct. These three capacitors are in series and gap is D, 2D, 3D, area is A. So all are in series. Formula for series is 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Here for the first C1, 1 upon epsilon naught A is the area upon D. For second, 3K epsilon naught A upon 2D. For third, PD upon 5K epsilon naught A. Here we can take common D upon epsilon naught A. So this is 1 by K 2 by 3K and 3 upon 5K. We can taking the LCM here, 3 upon K epsilon naught A, LCM will be 15. This is 15, 10 plus this 9 will be 34, 15, 3 upon K epsilon naught A. Taking the reciprocal here, 15 by 34 K epsilon naught A by D. Here option 4 is. In this question 3, this capacitor C charged with battery of voltage E. So initial energy will be 1 by 2 C, and let's say Q is the charge. So this is the 1 by 2 C Q square. And what is Q here? Q is given as CV. Yes. After switching close, after closing the switch, S, C and 3C capacitors are in parallel. तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 सी हो जाएगा यहाँ पे 4C, एंड अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा.
यहाँ पे हो जाएगा ये, क्या निकालना है, एनर्जी डिसिपेटेड मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस और एनर्जी डिसिपेशन means energy loss means initial energy minus final. Initial is half 2c square and half 4c square. पे ठीक शेयर क्यू स्क्वायर बाई टी सी कॉमन, वन बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 3/4, 3/4 can say here 3/8 c square. Option here is 3. So this is the energy. Question 4. This total capacitor is divided into 3 parts. हाफ पार्ट में एयर है, ये हाफ के भी हाफ पार्ट में 1/4 पार्ट में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर, एंड सिमिलरली ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा C3 विद एयर एंड C1 with dielectric constant K1 and C2 with dielectric constant C1 C2 जो सीरीज है वह C3 के साथ पैरेलल है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा C3 के C1 C2 के सीरीज के तरह से टोटल कैपेसिटेंस हो गया C3 और C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल है। हम C3 की जगह क्या लिखेंगे, एयर है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हो गया एंड डिस्टेंस d है। C1 के लिए K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड 2 एंड डिस्टेंस भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली C2 लिख सकते हैं हम ऐसे K2 एप्सिलॉन नॉट A/D में 2 कैंसिल हो रहा है, नॉट C1 प्लस C2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D एंड यार K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। हम ये कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/2, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K। आंसर हो गया ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। In this question, these capacitors C1 and C2 and C3 all are in parallel. Here K1 is given 10, 12 and 14. Area is 6. Separation distance here is 3 mm. पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल फुल्ली इंसर्टेड। इन तीनों को रिप्लेस कर दिया हमने एक ही कैपेसिटर से, लाइक से C का इफेक्टिव के कितना होगा ये निकालना है हमको। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। यहाँ पे हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने इंसर्ट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट टोटल एरिया हो जाएगा इसका A अपॉन गैप है D। C1 में K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया 1/3 है, 1 गैप तो D है। सिमिलरली K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 D। थर्ड के लिए K3 एप्सिलॉन नॉट A/3 and D।
यहाँ पे हम लोग अगर कॉमन ले लें या कैंसिल कर देते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा K1/3, K2/3, K3/3। ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3 आगे नीचे आ गया, K1, K2, K3। K1 की वैल्यू है 10, 12 एंड 14। के फाइनली मिल जाएगा हमको 36। के की वैल्यू हो गई 12। ऑप्शन इस क्वेश्चन, सपोज एन इलेक्ट्रॉन in this area, electrical field is here, an electron entering here with velocity say v1 at an angle of say alpha with the horizontal, and leaving an angle of say beta with velocity v2. Here electrical field is acting in vertical direction, there is no field in the horizontal direction. So horizontal component of velocity v1 and v2 will be the same. As there is no electrical field along x-axis, there is the electrical field along y-axis only. So velocity component along x-axis must be same. v1 cos alpha equal to v2 cos beta. So we can find the ratio of v1 by v2 will be cos beta divided by cos alpha. अगर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है K1/K2 at the entry point and the exit point. So you can find energy, kinetic energy half mv1 square and half mv2, m/2 कैंसिल हो गया, v1/v2 का रेशियो ये है, स्क्वायर है, तो इट इज cos square beta divided by cos square alpha. Option here is kinetic energy ratio 1/. In this question 7, the distance between two plates of the capacitor is d and its capacitance is 1 when air is medium. A metal sheet of thickness 2d/3 inserted of the same area, then find the value of C2/C. So C1 is epsilon naught A upon D, but here inserted a metal sheet of thickness 2d/3, where the gap between the plates is d and this is the metal plate, means conductor. So C2 will be C0 in C1 here with air and 1 minus T/D. C1 upon 1 minus T. T means 2D/3. So D cancel out. 1 minus 2/3 is 1/3. 1/3. C2 will be 3C1. तो निकालना है C2/C1 is 3/1. So option here is 3. हेलो, इन दिस क्वेश्चन में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है जिसकी वैल्यू वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन x गिवन बाय दिस रिलेशन, एंड अल्फा डी इज वेरी स्मॉल। एलिमेंटल पोर्शन का स्मॉल कैपेसिटेंस डीसी हो जाएगा ए की जगह हम ये लिख रहे हैं 1 प्लस अल्फा एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, स्मॉल डिस्टेंस है डी।
तरह के जितने भी एलिमेंटल पोर्शन बनेंगे ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करके हमने ये लिख दिया के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स ऑन 1 प्लस अल्फा एक्स। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके टी तक। एज्यूम कर रहे हैं लेट 1 प्लस अल्फा एक्स को हमने जेड ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 0 प्लस अल्फा डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो डी एक्स विल बी 1 बाई अल्फा, यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, विल बी 1 बाई सी ए एप्सिलॉन नॉट ए डी जेड वन जेड, अल्फा इधर आ गया, लिमिट लेंगे 0 से डी, ये जेड की नहीं है एक्स की लिमिट है। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका लॉग का, लॉग विद बेस ईयर एल एन जेड, जेड को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस अल्फा एक्स एंड लिमिट ऑफ एक्स की लिमिट है ये। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग हो जाएगा 1 बाई सी ए एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा एल एन 1 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर डी माइनस लॉग 1 ये हो जाएगा एल एन 1 प्लस अल्फा डी, एंड ये और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, सी विल बी चला जाएगा ये अल्फा बन गया, ये अल्फा डी इज वेरी वेरी स्मॉल, डी इज वेरी वेरी स्मॉल, आपको लिखेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, पुट कर देते हैं अल्फा फिर डी आ जाएगा, और में तो डी है, डी अल्फा डी कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2, अल्फा कैंसिल हो गया, पड़ जाएगा ए अल्फा नॉट ए अपॉन डी, ऊपर जाके बाइनरी थ्योरम लगा देंगे इसमें, फाइनली सी हो जाएगा के अल्फा नॉट ए अपॉन डी 1 प्लस अल्फा डी अपॉन 2, ऑप्शन 2।